Good morning students, welcome back to your online sessions of Maths class 8. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation, so I request to you, just avoid to go outside your homes unnecessarily, don't go into the crowded places, and if it should be necessary, if you have to go outside your homes, always we use the protective face of mask, always we take a sanitizers with you and wash your hands within 20 seconds if you are in home within a specific time of interval. So stay home and stay safe. Now students, today we are discussing about the new chapter of your syllabus, that is chapter number 6, which name is square and square root. If you see the page number 89, there is a chapter number 6 of NCERT book of syllabus, that is called square and square root. Now, before we studying of square and square root, generally in the previous class, maybe in a standard 7, you also know to how to find the squares of any number or how to find out the square root. Generally we have to be known about that. So if we have to see, like if you have to find out the area of the some figures which is the part of the mathematics, like square. If you want to find out the area of square, for example, area of square is equal to what? Side into side, side square. Side square is what? That is called as the area of square. So if area of formation of side of square is given 1 centimeter, if the side of square is given 1 centimeter, then what is its area? 1 into 1, that is a 1 centimeter square. Now if the side of square is given 2 centimeter, then what is the area? Area is equal to 2 into 2, 4 centimeter square. As well as if side of square is given 3 centimeter, side of square, so area of square is what? 3 into 3, 9 centimeter square. So each and every formation, if you want, have to find out the square of any numbers. So if you have to be multiply same number with that particular preceding numbers, the answer will be as a part of square. If I have a 4, so 4 into 4, that is a 16, it is a square of 4. If you want to find out the square of 8, so 8 into 8, that should be multiplied 2 times. So numbers which is multiplied by the 2 times of a same numbers, that generally produce the square, right? So this is the formation of square. 8 square is 64, 9 square is 81. So if you generally want to find out the square of any numbers, like 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 1696, 15 square is 225. So these are the general formations of the squares which is given in your textbook, like 1 to 20 square is there. So that is the formation of square. If we multiply the same number with the same numbers with the 2 times, it generally produces the squares. Now what about the square root? If I have to find out the square root, what we have to do? So generally if you want to find out the square root, you have to use the long division methods as a part of the fractions. So maybe start to divide the numbers with the same numbers, and if the numbers that should be in a form of pair. So whatever the number in a form of pair, then generally because it's square root. So in this chapter, we have to find out what is the square, how the square root will find out, how the squares of the particular number that should be find out. This we have to be discussing in this chapter. So later on we will start and move on to the exercise 8.1. If you see that exercise 8.1, there is a question is like what will be the unit digit of the square of the following numbers. If you see into the exercise 8.1, or maybe sorry 6.1. In the exercise 6.1, question number 1, first question is given. Now first question is given, what will be the unit digit of square of the following numbers? What will be the unit digit? Like this type of question. What will be the unit digit? Be the unit digit, right? What will be the unit digit of the square of the number? Like for example, I have number 81. I have number 81. Like, so if you want to square out this number, so unit digit of 81 square is like this. Unit digit of 81 square. So generally if you want to find out the unit digit squares of any number, so whatever the number is given, that on that number you have to find out its unit digit. If you see that, it's unit digit.
So unit digit is what? 1. Here is the unit digit 1. 1 square is what? 1. So the unit digit of 81 square always be 1. Let me move on to the second number, 272. Let me move on to the second number, that is 272. So unit digit of 272 square is what? 4. Right? Because if you see that the unit digit is what? 2. 2 square is what? 4. Let me move on to 3853 square. Third one, 3853. Okay? So unit digit of 3853 square. So 3 square is what? 9. So here the unit digit is what? 3. 3 square is 9. Similarly, we move on to the next number, 26387. Let us move on to the next number, 26387. So unit digit of the square, unit digit of 28387 square. So unit digit is what? Last digit 7. So 7 square is what? 49. 7 square is 49. So 49 में unit digit क्या होगा? 9. इसमें भी unit digit क्या होगा? 9 होगा, राइट? चलिए एक और ऐसा नंबर लेते हैं, 56849. 56849. So if you want to find out the square, unit digit of 56849 square. So 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81. तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको? 1. राइट? वैसे एक और नंबर लेते हैं, 73694. 73694. चलिए इसका यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करना है, यूनिट डिजिट ऑफ 73694 स्क्वायर. चलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 4. 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16. तो 16 में भी यूनिट डिजिट क्या है? 6. सो ऐसे जो नंबर्स आपको दिए होंगे, तो नंबर्स के हिसाब से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट, और उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा उसका वो आप उसको लिखेंगे. तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर. वी व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, देन वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें फाइंड करना है कि नंबर्स आर परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, और परफेक्ट or not. Why? We have to apply the reason. Now to the question number 2. Let me move on to the question number 2. We have to check the number is perfect square or not. The numbers are not perfect square. Why? ऐसे हमें लिखना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. The numbers are not perfect square. The numbers are not perfect square. Why? Why? Okay, इसमें अलग अलग नंबर्स देते हैं. चलिए उसमें पहला नंबर हम लेते हैं, that is 1057. 1057. राइट? सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा उसका यूनिट डिजिट. वी हैव टू चेक द यूनिट डिजिट, राइट? जैसे यूनिट डिजिट आपके पास 1 आता है, उसके अलावा 9 आता है, 4 आता है, उसके अलावा 6 आते हैं, 0 आता है, 5 आते हैं. ऐसे सारे नंबर्स अगर यूनिट डिजिट में होंगे ना तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. बाकी आप देखिए 3 है, इसके अलावा इसके बाद देखिए 9 का 1 7 है, 3 है, 7 है. ऐसे जो नंबर्स होंगे ना उसका अगर फॉर्मेशन जो होगा या 8 होगा, 3 7 8 ऐसे जो नंबर्स होते हैं, या 2 है, 2 में भी आप देखिए तो ऐसा कोई भी तो 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट ऐसा मिलता है आपको 2 3 7 8 कोई भी नंबर्स का, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इतना आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे 1057 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे यूनिट डिजिट 7. Here
unit digit here, unit digit is 7. unit digit क्या आपके पास 7. अगर unit digit 7 है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. So it is not a perfect square. So it is not a perfect square. ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49. तो वो जो यूनिट डिजिट लास्ट में आ रहे हैं, अगर वो यूनिट डिजिट हमें मिलेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. चलिए एक और नंबर लेते हैं. सेकंड में जो नंबर्स है वो लेते हैं 2 3 4 5 3. 2 3 4 5 3. अब इस नंबर के अंदर 2 3 4 5 3, उसमें आप देखें तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, 3. यूनिट डिजिट क्या आपके पास 3 है. क्या लिखेंगे here unit digit, here unit digit is 3. तो अगर यूनिट डिजिट आपको 3 मिलेगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. so it is not a perfect square. so it is not a perfect square, right? उसी तरह अगर मान लीजिए कोई नंबर्स 8 से एंड हो रहा है, यूनिट डिजिट 8 एंड हो रहा है, 7928, 7928, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है. हियर यूनिट डिजिट, हियर यूनिट डिजिट इज 8. ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आपके पास 8 है. सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो it is not a perfect square. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट 2 मिले या आपको 3 मिले, 8 मिले, 7 मिले, ऐसे अगर यूनिट डिजिट आपको मिलते हैं किसी भी नंबर्स के हिसाब से, तो वो नंबर्स आपका क्या होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. वो नंबर्स आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. या फिर मान लीजिए कि एंड में एक ही जीरो हो, एंड में अगर एक ही जीरो हो तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. जैसे मान लीजिए कौन नंबर लिखता हूं मैं, 50 50 एंड 50 50 50 एंड 50. यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसमें एक ही जीरो है, ओनली 1 जीरो. तो लास्ट में अगर एक ही जीरो होगा तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, या यूनिट डिजिट 2 होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. या फिर मान लीजिए कि 3 जीरो 3 जीरो के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 220000. यहाँ पे आपके पास 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, 3 जीरो हो 1 जीरो हो तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब आपके पास 2 जीरो हो, 4 जीरो हो, या यूनिट डिजिट 1 हो, या यूनिट डिजिट आपके पास 4 हो, या यूनिट डिजिट आपके पास 6 हो, या यूनिट डिजिट आपके पास 9 हो. ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. अगर उसके अलावा कोई नंबर्स है तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2. अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है इन द क्वेश्चन नंबर 3 और द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स. ऐसा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर. किसका स्क्वायर हमें ऑड नंबर मिलेगा. चलिए यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 431. कौन सा ऐसा नंबर्स होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे अलग अलग नंबर्स लिखता हूँ और मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड नंबर होगा वो. सो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन के हिसाब से आपका जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट जो होगा वो डिफाइन करेगा. यूनिट डिजिट अगर ऑड है तो इसका स्क्वायर आपको ऑड मिलेगा. यूनिट डिजिट अगर इवन है तो इसका स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा. तभी आप देखिए 431 के अंदर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1. यूनिट डिजिट क्या है, 1. तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा. तो 431 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड नंबर. 431 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ऑड नंबर मिलेगा. वही मान लीजिए मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ 2826.
यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, इवन है, 6 इज इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो विल गेट द इवन नंबर। सो स्क्वायर ऑफ 2826 इज इवन नंबर। 2826 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। वैसे दूसरा नंबर लेते हैं 777 यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आपके पास 9, यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो इसका भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 777 इज ऑड नंबर, ठीक है। या फिर फोर्थ अगर कोई लिखना है आपको तो जैसे 82440 लेते हैं, 82404, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास 4, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, राइट। तो ध्यान रखना है अगर कोई भी नंबर के अंदर यूनिट डिजिट अगर ऑड है, यूनिट डिजिट ऑड है तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा, और अगर यूनिट डिजिट आपका इवन है और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें मिसिंग डिजिट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें अलग एक पाथ दिया, पाथ के अंदर का मुझे मिसिंग डिजिट फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 let me move on to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक डिजिट्स आपको दिया है, उसके हिसाब से हमें लिखना है। जैसे 11 का स्क्वायर दिया है और उसके बाद 101 का स्क्वायर दिया है, फिर 1001 का स्क्वायर दिया है, जैसे 11 का स्क्वायर दिया है, 101 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको 1001 का स्क्वायर दिया है, 1001 का स्क्वायर दिया है, फिर 1 के बाद 000 है, 1 2 3 1 स्क्वायर, उसके बाद 40 है, 1 2 3 4 1 स्क्वायर, उसके बाद 50 है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर। ऐसे आपको अलग अलग नंबर दिए हैं। इसका नंबर दिया आपको 121, 11 स्क्वायर इज 121, फिर ये दिया होगा आपको 10201, राइट, 10201, फिर नेक्स्ट दिया होगा आपको 100 2001, 100 2001। उसके बाद बाकी के 3 नंबर्स रह गए, उसके बाद हमारे पास बाकी के 3 नंबर्स रह गए। 3 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो अगर 3 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने कौन कौन से हैं, 30 40 एंड 50, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 30 का फॉर्मेशंस लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 000, 2 के बाद 000 और 1, सिंपल फॉर्मेशंस रहेगा आपके पास। 40 है तो 1 के बाद 40, 2 के बाद 40 एंड देन 1, ठीक है। 50 है तो 1 के बाद 50 देन 2, फिर से 50 एंड 1। तो ऐसे आप मिसिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस देखो तो 11 है तो 121, यहाँ पे 0 बढ़ा तो 1 के बाद 1 0, 2 के बाद 1 0 बढ़ा, यहाँ पे 2 0 बढ़े तो 1 के बाद 2 0, 2 के बाद भी 2 0 बढ़े, जब 3 बढ़ेगा तो 1 के पीछे 3, 2 के पीछे 3 0, 4 0 बढ़ेंगे तो 1 के पीछे 2 के पीछे 4 0, वैसे आप नंबर्स ऑफ सीक्वेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर फॉर्म में इस तरह से आपको मिसिंग पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। नाउ इनटू द क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया है, उस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द पैटर्न, observe the pattern, okay, observe the pattern and supply the missing number, and supply the missing number, supply the missing number।
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सेम नंबर्स हमें दिया है जो भी हमने अप्लाई किया। 11 का स्क्वायर आपको दिया है 121, राइट। उसके बाद आपको दिया है 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर 10201, राइट। उसके बाद हमें 10101 का स्क्वायर दिया है, 10101 का स्क्वायर, 10101 का स्क्वायर आपको क्या दिया है, 102030, 102030 राइट। उसके बाद हमें दिया है 101001, 101001 का स्क्वायर, राइट। अभी हमें 101001 का स्क्वायर दिया है तो लिखना पड़ेगा 10203040302001, 10203040। याद है, आप कंटिन्यू करेंगे। देन मूविंग ऑन डाउन साइड, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, राइट है। उसके बाद हमें एक नंबर दिया है, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ये नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और आंसर हमें दिया हुआ है। आंसर अगर आप देखेंगे तो 50 तक जाना है आपको, 1020304050। उसके बाद रिवर्स करना है 40302001, ठीक है। तो कितने जीरोस बढ़ेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 10 10 10 एंड 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर्स तक जा रहा है, इसलिए 5 नंबर्स तक आपको उसको कैरी करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको इसी तरह से अगर पैटर्न्स दिए और पैटर्न्स हमें फाइंड आउट करना है, इसी नंबर से हम पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द फाइंड आउट पैटर्न्स। चलिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड आउट। अब एक पैटर्न दिया है, उसमें से भी हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड सप्लाई द मिसिंग क्वेश्चन। वही रखता हूं बट क्वेश्चन चेंज करता हूं, जस्ट आई चेंज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 6 पे। लेट मी गो ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। अभी यहां पे तीन नंबर्स है, इसलिए उसको 3 स्क्वायर कहते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट। यहां पे कितने डिजिट है, 1 2 और 3, ठीक है। इसे सिंपल फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां पे आपको क्या लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर लिखा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर लिखता हूं, चलो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 4 8 प्लस 1 9। नेक्स्ट लिखता हूं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर वो आपके पास है 7 स्क्वायर, ठीक है। जैसे मूव करें ध्यान रखना। फिर 3 4 12, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 3 7 के बाद सीधा आता है 13, ठीक है। 3 7 के बाद कितना आता है 13। नेक्स्ट सीक्वेंस में दिया 4 5 मिसिंग दिया आपको 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस मिसिंग स्क्वायर, ओके। उसका आंसर आपको 21 स्क्वायर दिया है, उसका आंसर आपको 21 स्क्वायर दिया है। देन 5 स्क्वायर फिर मिसिंग स्क्वायर प्लस यहां पे आपको दिया 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। उसी तरह हमें दिया है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस मिसिंग टर्म स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मिसिंग टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले तो हमें इस टर्म पे आना है, इस वाले टर्म्स पे। अभी आप देखिए जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 का प्रीसीडिंग वैल्यू 2 यहाँ पे है, 7 है, 7 का प्रीसीडिंग वैल्यू 6 है, 13 का प्रीसीडिंग वैल्यू 12 है, 21 का प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होना चाहिए 20। अब लिख दिया 20। चलिए अभी हर एक नंबर में 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद क्या आना चाहिए 6, क्या आना चाहिए 6। अभी 6 7 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है आप देखेंगे 12 20 30 हर एक में नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 12। 2 के 4 कितना डिफरेंस है 4, 6 to 12 6, 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद क्या होना चाहिए 12। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 42 स्क्वायर और ये हो जाएगा 43 स्क्वायर। तो ऐसे जो है वो
प्रीसीडिंग नंबर्स के जो टर्म्स है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे आप उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है उस हिसाब से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, उसमें भी एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चंस पे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एडिंग वी हैव टू फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 7 without adding find sum, without adding find sum, right? उसमें जैसे दिया है पहला 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, right? ऐसा हमें नंबर दिया है। So we know that the sum of n odd numbers is n square। एक चीज हमें पता है, we know that sum of n odd number is equal to n square। Sum of n number is what? N square। So in 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, n is equal to what here? 5। 1 2 3 4 5 digits are there। So 5 square is equal to what? 25। if you add this number you will get the answer is 25, right? Let me move on to the second question। 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13। Let's move on to the 13। If you want to additional, you have to 15, 17, 19. 15, 17 and 19, right? So how many digits are there? All are the odd numbers। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 odd numbers are there, 10। So n is equal to 10 odd numbers, right? n is equal to 10 odd numbers। So if you want to find out the sum of this number, so n square is equal to 10 square is equal to 100। The sum of these numbers are what? That should be the 100। So without adding the numbers, if the numbers are odd number, by using this formation we can find the sum of these numbers। So I hope if what we have to be studied today about the square and square root, how we find the missing patterns, how we find the sums without adding them, it should be easily understood by you। Well, we're moving on to the next part of this chapter. We are moving on to the how to find out squares, how to find out square roots, which are the numbers that have to be subtracted or maybe divided or maybe multiplied to make them the perfect numbers। So students, I request you to stay home and stay safe and keep revising, keep updating your knowledge by using the digital mediums of learning। Also practice the illustration question which is given into your syllabus or the textbook। Also I implementation only the sums which are available into the form of exercise। So students, we'll meet tomorrow for the next topic of this chapter of 6 square and square root of a part 2। Take care and bye।